کفار کے جتنے بھی گروہ تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے وہ اس جنگ میں جمع ہوئے۔ حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، اس کی جمع ہے احزاب۔ حزب کی جمع احزاب ہے، یعنی یہ ایک گروہ یا ایک لشکر نہیں تھا بلکہ بہت سارے لشکر مل کر جمع ہوئے مسلمانوں کے خلاف۔ اور یہ وہ واحد جنگ ہے کہ جس کے نام پر ہی اللہ رب العزت نے ایک پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس جنگ کے واقعات کو بالتفصیل بیان کرتے ہوئے جہاں مسلمانوں اور منافقوں کے طرز عمل کا ذکر کیا کہ منافقین کا طرز عمل مسلمانوں کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف کیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے اس جنگ کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے وہ مشہور آیت مبارکہ فرمائی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ مہر ثبت کی کہ قیامت تک کے لیے تمہاری زندگیوں میں تمہیں جو بھی معاملات درپیش ہو، وہ تمہاری ذاتی زندگی کے احوال ہوں، وہ تمہاری خاندانی گھریلو آئینی زندگی کے احوال ہوں، وہ تمہاری معاشرتی زندگی کے احوال ہوں، وہ تمہاری سیاسی زندگی کے احوال ہوں، وہ تمہاری ملٹری جنگ ہو، جنگوں کی زندگی کے احوال ہوں، جس لمحے جہاں کہیں پر بھی ہو تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی کامل نمونہ کے طور پر موجود ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے چلے جاؤ اور کامیابیوں کو سمیٹتے جاؤ۔ اور منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اپنے تئیں اپنی عقل اور اپنے شعور سے فیصلہ کرنے کو ترجیح دیتے تھے اور ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ یہ حالات موافق ہیں یا نہیں ہے۔ ادھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ادھر وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور ادھر وہ مسلمانوں کے درمیان بھی بدحواسی اور خوف کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی ڈر پیدا ہو جائے اور وہ اس جنگ اور کے خوف اور ڈر کی وجہ سے پلٹ جائے، اپنا دین چھوڑ دے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے درمیان میرا محبوب موجود ہے۔ یہ اس کا پہلا جز ہے، اور پھر اگلا جملہ اسوۃ حسنہ، اور صرف میرا محبوب نہیں موجود، اس کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ کے طور پر موجود ہے۔ تو آج جو واقعات اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہیں، ہم جب اس جنگ کے واقعات کو دیکھیں گے تو اس کے تناظر میں ہم نے خود کو بھی دیکھتے چلے جانا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اگر یہ معاملات ہمیں درپیش ہوں۔ سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی۔ یہاں جو ایک مماثلت آج کے دور میں ہے وہ بالکل آپ اگر اس کو دیکھیں تو اس دور میں بھی بنیادی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی تھی، بنیادی دشمنی، یعنی جو جنگ کی صورت اختیار کر لیتی تھی جو دشمنی، وہ مشرکین مکہ سے، کفار سے، مشرکین تھے بنیادی طور پر، اور 2 جنگیں اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے ساتھ کر چکے تھے، غزوہ بدر بھی اور غزوہ احد بھی۔ بدر میں انہیں شکست فاش ہوئی اور احد میں بھی وہ بہت سا نقصان اٹھا کر واپس پلٹے، گو کہ اس میں مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا لیکن واضح فتح کسی ایک گروہ کو بھی نہیں ہوئی، لیکن کفار کو بھی نقصان تھا۔ تو وہ اپنے اندر وہ غصہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک اس چیز کو اپنے پاس رکھ لیں ذہن کے اندر کہ ایک طرف وہ قریش مکہ اور مشرکین کا لشکر ہے،
दूसरा मामला वो मदीना के अंदर पेश आया। अब मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि मैं जैसे जैसे वाकयात बयान कर रहा हूं, आप जहन के अंदर मौजूदा हालात का नक्शा लेते चले कि कहां मुसलमानों का कोई दोस्त है, कहां कोई दुश्मन है, और कहां कोई दोस्तों के रूप में दुश्मन है, और कहां कोई दोस्ती के रूप में साजिशें कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये सारी कैफियत मुसलमानों को आज भी दरपेश है। तो मदीना में अहले किताब जो यहूद थे, उनके दो कबाइल आबाद थे, एक बनु कुरैजा और एक बनु नदीर। ये वाद के साथ है, बनु जिसको अमूमी तौर पर बनु नजीर कहते हैं, लेकिन अरबी तलफ़ुज़ में हम इसको बनु नदीर कहते हैं। तो बनी नदीर ने यह काम किया कि एक शख्स था जो मुसलमानों का और आका अलैहिस्सलाम के साथ जिनका मुआहिदा था, उस शख्स को कत्ल कर दिया गया। उसका किताब को, उसका नाम कुतुब सीरत के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची कि उसको का जो कत्ल करने वाले का जो कातिल है वो बनी नदीर में मौजूद है। तो आका अलैहिस्सलाम उस कत्ल के किसास के लिए बनु नदीर कबीला के पास तशरीफ ले गए, उनके बाजार में तशरीफ ले गए। और एक वाकया ये है कि बनु नदीर ने खुद आका अलैहिस्सलाम को दावत दी, हुजूर को अपने यहां दावत दी, और ना सिर्फ हुजूर को दावत दी बल्कि आका अलैहिस्सलाम से ये गुजारिश की कि आप अपने साथ 3 मजीद लोगों को लेकर के आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मौला कायनात और अली करमल्लाहु वजहुल करीम। अब चाहे आका अलैहिस्सलाम उस कत्ल के किसास के लिए तशरीफ लेकर के गए या उनकी दावत पर तशरीफ लेकर के गए, अगला वाकया एक है, और वो ये है कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को शहीद करने का नापाक मंसूबा तरतीब दिया, इस हाल में कि उनका आका अलैहिस्सलाम के साथ वो मारूफ मुआहिदा, जिसको मीसाके मदीना के नाम से याद किया जाता है, वो मुआहिदा था हुजूर के साथ। यानी वो मुसलमानों के आज की मॉडर्न लैंग्वेज के मुताबिक उनका मुसलमानों से अलायंस था, वो मुसलमानों के एलाए थे, और रियासत मदीना के तहत वो एक शहरी तसव्वुर होते थे मदीना के, और उन पर भी लाजिम था कि अगर कोई बाहर से मुसलमानों पर हमला करे तो मुसलमान और यहूद मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन यहां मामला यह हुआ कि उन शहरियों ने खुद आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ कत्ल की साजिश की, और साजिश ये थी कि जहां हुजूर को बुलाया उस मकान की छत पर बहुत सा बड़ा पत्थर रख दिया और कहा कि जब हुजूर तशरीफ फरमाओ तो इस पत्थर को लुढ़का दिया जाए और माअज़ल्लाह आका अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। जिब्रील अमीन ने आका अलैहिस्सलाम को इस साजिश से आगाह फरमा दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बदबख्तों ने ये साजिश तैयार की है, आप जल्द यहां से वापस तशरीफ ले जाए। आका अलैहिस्सलाम वहां गए जरूर, लेकिन उनके इस साजिश के आगाज से पहले ही आका अलैहिस्सलाम ने वो इलाका, वो मकान, वो घर छोड़ दिया। फिर उसके बाद 15 दिन तक उनके कलों का मुहासरा रहा, और उन बदबख्तों को पहले तो आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इन्होंने क्योंकि मुआहिदा की खिलाफ वर्जी की है तो इस बिना पर इनको निकाल दिया जाए, मदीना बदर कर दिया जाए। अब याद रखिए, ये जो आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है, ये बिल्कुल इसको आज के मॉडर्न डे के हिसाब से आप समझें। कोई फर्द जो रियासत में रहता हो और रियासत के हाकिम के खिलाफ बगावत करे और हाकिम को ही कत्ल करने का मंसूबा या साजिश बनाए, और या वो ये कहे कि हम इस रियासत के कवानीन को नहीं मानते, तो चाहे पाकिस्तान हो, यूरोप और अमेरिका हो,
पूरी दुनिया का कानून ये कहता है कि जो गद्दार है, जो बागी है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक उस मुल्क का शहरी है या नहीं है। यहां दो बातें अर्ज कर दूं, अगर तो वो उस मुल्क के खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुर्तकिब है तो फिर तो उसकी सजा कत्ल है। ये मॉडर्न डे के कानून के मुताबिक भी यही है, इसमें कोई मुआफी नहीं। और अगर कोई दूसरे मुल्क का शहरी हो, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी यूएई के अंदर, यूरोप और अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर वहां रहते हैं, और वो वहां रहते हुए कहें कि हम इस मुल्क के कवानीन की पासदारी नहीं करते, तो ऐसी सूरत के अंदर वो मुल्क उनको रखता नहीं है, बल्कि उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है, जिसको हम अपनी जबान में डिपोर्टेशन कहते हैं, कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। चेह जाए कि उनको वहां की शहरियत ही क्यों ना मिल गई हो, उसके बावजूद उनके पेरेंट मुल्क के अंदर जहां से वो ताल्लुक रखते हैं वहां वापस भेज दिया जाता है। ये आज के दौर का कानून है। उस दौर में उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ जब साजिश की, तो आका अलैहिस्सलाम ने जो पहला हुक्म जारी फरमाया वो फरमाया कि इन बदबख्तों को मदीना से निकाल दिया जाए। तो वहां अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, उसने उन यहूदियों को के कान भरे और उनको इस बात पर तैयार किया कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करूंगा और हम मदीना से नहीं जाएंगे। इस पर आका अलैहिस्सलाम ने लश्कर तैयार किया और बनु नज़ीर का मुहासरा हुआ, और 15 दिन के मुहासरे के बाद वो इस बात पर आए कि हमें कुछ ना कहा जाए, हमें कत्ल ना किया जाए, जितना माल कहा जाएगा टैक्स देने के लिए हम तैयार हैं, हमें जिंदा जाने दिया जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बदबख्त यहां से निकल कर चले जाओ। तो बनु नज़ीर के जो अहले किताब यहूदी थे वो मदीना से निकले और खैबर जाकर आबाद हो गए। अब आज के दौर के साथ इसका ताल्लुक ये बनता है कि हमें इन वाकयात का इल्म ही नहीं है। पूरी ईमानदारी से बताएं, हम में से कितने लोगों को इन बातों का इल्म आज से पहले था जो हमने अभी तक की है, इस पूरी सूरत हाल का हम में से किसी को इल्म है यहां तक? अब आइए इसका दूसरा मंजरनामा देखिए। हमें इल्म नहीं है, हमें इल्म, बोलिए, हमें इल्म नहीं है। और दूसरी तरफ वो कौम है जो इस दिन को आज के दिन तक भूली नहीं है। वो आज भी मुसलमानों पर इसीलिए हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो दिन जब तुमने हमें मदीना से निकाला था, हम तुम्हें तुम्हारे मुल्क और शहरों से निकाल देंगे। वो आज भी उसको याद करके मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और जंग के मैदान के अंदर है। और मुसलमान अपनी इस तारीख को भुलाकर, छोड़कर हम अय्याशी के अंदर पड़े हुए हैं और हमारा सारा ध्यान दुनिया कमाने और दुनिया का माल और दौलत समेटने पर है। और हमें अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख से कोई लेना देना नहीं। और मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप जाइए इंटरनेट के ऊपर, ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा कि मैंने जज्बाती कर दी है, इसके ऊपर जाकर आप आर्टिकल्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, उनका जाकर लिटरेचर पढ़िए अहले किताब का, आपको इल्म होगा कि वो आज भी एक मजहबी जंग लड़ रहे हैं और वो उसी दुश्मनी को निभा रहे हैं जो 1400 साल पहले जिसका ऐलान उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से किया था। और हम आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे महबूब, तुम्हारे आका मौला महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी नमूना है, तुम्हारे लिए रोल मॉडल है। जिस लम्हे रहनुमाई हासिल करना हो उसकी तरफ पलट कर देख लो। हम आज के दौर में इन हालात में भी हम दाएं और बाएं देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहां से हमारे लिए रास्ता निकलेगा। वो रास्ता आज भी पलट कर हमें पीछे देखें तो आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के अंदर हुजूर की हयात मुबारका हमारे लिए मौजूद है। और वो क्या है वो मैं आगे चलकर अर्ज कर देता हूं।
اب جب بنو نذیر کو بھی مدینہ بدر کر دیا گیا، یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے، تو بنو نذیر قبیلے کا ایک بڑا اہل کتاب میں سے جو ان کا سردار تھا، اس کا نام تھا حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب سردار ان کا، یہ اہل مکہ کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ ہم تو وہ کہ اہل کتاب ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے مقابلے میں تم ہمیں زیادہ بھلے معلوم ہوتے ہو۔ اور آپ یاد رکھیے کہ یہ اہل کتاب ہیں جن کی کتاب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ان تفصیلات کو پڑھتے پڑھتے یہ مصر اور فلسطین چھوڑ کر مدینہ کے اندر آ کر آباد ہوئے، یہ شام اردن کا علاقہ چھوڑ کے مدینہ میں آباد ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے، لیکن کو جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ روابط رکھتے یا حضور پر ایمان لے کر کے آتے، جس کو سورہ بقرہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے بار بار ان کو یاد کروایا، بار بار یاد کروایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرو۔ لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں وہ مشرکین مکہ کے پاس جا کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اور تمہارا مذہب مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ اس گروہ کا اور ان اہل کتاب کا عالم کیا ہوگا کہ جو لوگ ان کفار مشرکین کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں اور ان کو مسلمانوں سے بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ النساء کے اندر، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب دی گئی اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ دوستان مکرم، یہ ہے قرآن مجید جو ہماری ایک ایک قدم کے اوپر رہنمائی کر رہا ہے۔ ہمیں جو سچویشن، جو حالات، جو واقعات آج درپیش ہے، قرآن مجید ان کی ہدایت اور رہنمائی ہمارے 1400 سال پہلے کر چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو غور کیجیے، سورہ النساء کی آیت نمبر 51 پوری آج کے دور کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہ اہل کتاب مشرکین کے ساتھ ایک پیج پر ہے، اور اس دور میں بھی انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں، آقا علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی میں انہوں نے کفار کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ جو میں نے کہا تھا کہ ہم صرف غزوہ خندق کو بیان نہیں کریں گے، اس کے حالات و واقعات کے اندر ہم اپنے اپنے معاملات کو، موجودہ دور کے معاملات کو دیکھتے چلے جائیں کہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور قرآن مجید اور آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کیسے ایک ایک قدم پر، ایک ایک انچ پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس کو میں مختصر کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب یہ لوگ اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اہل مکہ جو بدر اور احد کا غم کھائے ہوئے تھے وہ ان یہود کی باتوں میں آ گئے، ساتھ میں انہوں نے قبیلہ بنو غطفان، یہ بھی اہل کتاب یہود کا ایک قبیلہ تھا، ان کو ساتھ میں ملا دیا۔ تو بہت سے ہم نوا آپس میں ملے اور انہوں نے مل کر ایک الائنس بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ بولیے، الائنس بنا لیا۔ آج کے دور کا لفظ ہے، اس دور کے اندر قرآن نے اس کو کہا ہے کہ وہ بہت سارے حزب، گروہ، لشکر، جماعتیں مل کر مسلمانوں کے خلاف احزاب بنا کر آ گئے۔ آج کے دور میں اسی کو الائنس کہتے ہیں۔ اب اگر ہم پچھلی 70 سال کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں وہاں پر بھی بہت سارے
alliances बनते हुए नजर आएंगे। और आज के दौर में भी अगर आप खबरों में पढ़ें तो एक लफ्ज आपको बहुत मारूफ सुनने को मिलेगा, जिससे आप यकीनी तौर पर सारे ही वाकिफ हैं, और वो लफ्ज है नेटो अलायंस का। है या नहीं है? ये मुख्तलिफ ममालिक का मिलिट्री अलायंस है आपस में, कोई तिजारती अलायंस नहीं है आपस में, कोई सोशल अलायंस नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है। ये प्योरली एक मिलिट्री अलायंस है, जिसके लिए अमेरिका बार बार पुश कर रहा है उसके अपने सारे इत्तेहादियों को कि वो जंग में शामिल हो जाए। और ये सारे इत्तेहादी मुसलमानों के खिलाफ पिछली सारी जंगों में, वो अफगानिस्तान में हो, वो लीबिया के अंदर हो, वो शाम के अंदर हो, वो इराक के अंदर हो, इन सारी जंगों में ये सारे अहज़ाब, ये सारे नेटो के इत्तेहादी मिलकर शामिल और शरीक रहे। ये पहला मौका है कि उन्होंने अमेरिका को इस मौका पर ना की है। उसकी वजह मैं आगे चलकर अर्ज करता हूं, जो ग़ज़वा खंदक और अहज़ाब से हम अखज़ करेंगे कि ये भी आका अलैहिस्सलाम की बरक़ात और दुआओं में से है जो अहले फारस को नसीब हुई। तो इन्होंने जब बहुत बड़ा एक लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तरतीब दिया मदीना पर हमला के लिए, तो यहीं से इस नुक्ते का आगाज हो रहा है। और वो अहले फारस की बरक़ात क्या है कि आका अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी मीटिंग कॉल की। हुजूर ने सब सहाबा कराम से पूछा कि बताओ, ये आका अलैहिस्सलाम का मामूल था, और ये है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हुजूर ने अपनी हयात मुबारका से जो हमें नमूना दिया, गोल मॉडल दिया, वो क्या है? वो ये है कि बावजूद इसके कि आपके पास गैर की खबरें मौजूद हैं, बावजूद इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर आका अलैहिस्सलाम के इल्म में है, ये सारी मालूमात हुजूर सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर जानते हैं, इसके बावजूद उम्मत को तालीम ये दी है जब भी तुम्हें कोई मुआमला पेश आ जाए तो कुजाए कि अकेला अपना फैसला नाफिज कर दो, अपने साथ रहने वाले दोस्तों, अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने खानदान वालों को मिलाकर उनके साथ मशवरा कर दिया, इसलिए कि उस मुशावरत के अंदर अल्लाह की बारगाह से खैर शामिल होती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने बावजूद इसके कि हुजूर हाकिम भी हैं, सुल्तान भी हैं, और हुजूर मनसब रिसालत और मनसब नबूवत पर कायम हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से वह अल्लामा का मालम तकुन तालम का इल्म भी हुजूर के पास है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने मुशावरत को इख्तियार फरमाया, सहाबा कराम से मुशावरत की। इसकी एक और वजह है जो आज के दौर में मॉडर्न डे के अंदर हमें मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, आईआर के अंदर, पॉलिटिकल साइंस में हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, टीम मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि टीम लीडर वो होता है जो अपने टीम की मेंबरान के मशवरे के साथ एक फैसला करे और सारी टीम मिलकर उस पर अमल दरामद करे, तो वो टीम कामयाब टीम होती है। आका अलैहिस्सलाम ने ये उसवा हसना हमें 1400 साल पहले कहा। और दूसरा, मॉडर्न डे के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर ये पढ़ाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि टीम के जितने मेंबरान हैं वो उस फैसले को ऑन करते हैं, उन्हें ऑनरशिप मिलती है। वो कहते हैं कि क्योंकि हमारी बात मानी गई है, हमारे टीम लीडर ने, हमारे सरदार ने, हमारे हाकिम ने, हमारे हुक्मरान ने हम पर ट्रस्ट किया है, हम पर बिलीव किया है और हमारी बात को मानते हुए फैसला किया है, तो वो उस फैसले के निफाज में अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर देते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने ये अमल 1400 साल पहले करके इंसानियत को बताया। हुजूर ने मुशावरत फरमाई, मुख्तलिफ सहाबा की मुख्तलिफ आरा थी, उनमें से एक राय हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अहले फारस ऐसे मौका पर खंदक खोद लिया करते हैं, तो मदीना की एक सिमत में जंगल है, एक सिमत में पहाड़ है, हम अपने बच्चों और औरतों को अपने पीछे रखेंगे और सामने की साइड जो खुली हुई है, जहां मैदान है, वहां पर एक लंबी चौड़ी खंदक खोद देते हैं जो दुश्मन और हमारे दरमियान रुकावट बन जाएगी। अब आइए कुरान मजीद की तरफ पलट कर जाते हैं कि कुरान मजीद ने इस मंजरनामे को कैसे बयान किया है।
قرآن مجید نے یہ پوری منظر کشی کی ہے، اس کی تصویر کشی کی ہے کہ کیسے جب کفار کا اتنا بڑا لشکر 10,000 کی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف جب نکل آیا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑا، اور ان کی ایک ہی نیت تھی، اور وہ نیت یہ تھی کہ جہاں ان مسلمانوں کو سرے سے ختم کر دیا جائے اور اپنا حساب برابر کر دیا جائے، تو قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم، اور جب یہ پورے کا پورا لشکر تمہاری مشرقی جانب سے بالائی طرف سے تمہاری طرف آیا، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہاری زیرین نیچے والی طرف مغربی جانب سے تمہارے پر آیا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی، تم خوف زدہ ہو گئے تھے، تم ڈر گئے تھے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل تمہارے حلق میں آ چکے تھے اتنا بڑا لشکر دیکھ کر، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنا شروع ہو گئے تھے، تم سوچنے لگ پڑے تھے کہ ہم پتہ نہیں سچے ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ رب العزت دلوں کے حال جانتا، اللہ پاک فرما رہا ہے تم جو اس وقت دلوں میں خیال کر رہے تھے میں اس کو قرآن کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر خود فرمایا کیوں یہ عمل ہوا، اس عمل کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ جنگ اس لیے تم پر مسلط کی گئی، اللہ پاک اس پوری کیفیت سے مسلمانوں کو پرکھنا چاہتا ہے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی غزوہ بدر کا جو ہم نے گفتگو کی تھی رمضان میں عرض کیا کہ مسلمان کے اوپر جب ایسی کیفیت آتی ہے، وہ ایسی کیفیت میں نہ تعداد دیکھتا ہے، نہ ٹیکنالوجی دیکھتا ہے، نہ وسائل دیکھتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر تیقن اور یقین اور ایمان کی طاقت کو دیکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہے۔ آپ پوری ایمانداری سے بتائیں اس موجودہ حالات کے اندر ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس میں شہادت کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا یا نہیں ہوا، بتائیں۔ جی کر رہا تھا کہ اگر زندگی ایسی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں اس حال میں ہو کہ اوپر سے جہاز گزر رہے ہوں، میزائل گزر رہے ہوں، بمباری ہو رہی ہو، لیکن نیچے اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کے اپنے ایمان اور جذبے کو بڑھایا جا رہا، انسان میدان کارزار کے اندر کھڑا ہوا اور رب کو پکار رہا، اور ایک طرف پوری انسانیت کے اور بالخصوص پورے عالم اسلام کے شدید ترین دشمن کھڑے ہوئے، شدید ترین دشمن جو اسلام کو سرے سے مٹا دینا چاہتے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ اس فکر کے پربردہ لوگ ہیں جنہوں نے فکر عرب کو، وہ جو اسلام کی تہذیب، اسلام کا کلچر تھا، اس کو پورے عرب سے نکال کر وہاں پر مغربی تہذیب کو نافذ کر دیا ہے۔ وہ محمد عربی کی سوچ اور فکر اور کلچر کو وہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اگر محمد عربی کے کلچر کے ساتھ، حضور کے دی ہوئی تعلیمات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو ہمارے سامنے دنیا کے اندر وہ قوم ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک ہی قوم کھڑی ہے۔ ہم اپنے حسد اور بغض میں انکار کر دیں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، لیکن سورج روز روشن کی طرح چمک کر بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا دامن پکڑا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا دامن پکڑا، اس دنیا کے اندر جب مقابلہ کفار کے ساتھ ہوا، جنہوں نے اپنا رول ماڈل مولا علی کو بنایا ہے، جنہوں نے اپنا رول ماڈل سیدنا امام حسین کو بنایا ہے، تو کفر جس شکل میں بھی آئے وہ اس کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی غزوہ خندق میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودی، اور یہاں اب وہ میں بات عرض کرتا ہوں، ایک تو حضرت سلیمان فارسی کا جو مشورہ تھا اس کو مانا گیا کہ خندق کھودنا شروع ہوئی، یہ
तकरीबन 3.5 मील लंबी खंदक है जो खोदी गई, और इसकी जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 30 फुट थी और इसकी गहराई 15 फुट थी। जब ये खंदक खोदी जा रही थी तो हज़रत सुलेमान फारसी खुद, जिन्होंने ये मशवरा दिया, वो कवि और जुस्सा थे। तो अंसार कहते थे कि ये अंसारी हैं, ये मदीना में रहने वाले हैं। मुहाजिर कहते थे नहीं, ये बुनियादी तौर पर अंसारी नहीं है, ये फारस से हिजरत करके आए हैं, तो जैसे हम मुहाजिर हैं ये भी मुहाजिर हैं, तो इनको मुहाजिरीन के गिरोह में शामिल किया जाए। अंसार कहते थे इनको अंसार के गिरोह में शामिल किया जाए। ये केस आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलमान ये हमारे अहले बैत में से है। तो हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी होने के बावजूद आका अलैहिस्सलाम ने ये एजाज दिया कि वो आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत में से शामिल। और यही वजह है कि ये वो वाहिद हस्ती है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दूसरी, जिनको आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत तक रसाई बराह रास्त हासिल थी। जब भी सैयद कायनात के दर दौलत पर जाना होता, आका अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा करते या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा करते। इस मौका पर आका अलैहिस्सलाम के कुछ मौजज़ात रूनुमा हुए। उनमें से एक मौजज़ा ये था कि एक बहुत बड़ा पत्थर, जिसको तमाम सहाबा ने कोशिश की कि उसको तोड़ डालें, वो चट्टान टूटी नहीं। जब आका अलैहिस्सलाम के सामने केस पेश हुआ, हुजूर तशरीफ ले गए, हुजूर ने कुदाल अपने हाथ में ली, तो जैसे ही पहली कुदाल मारी उस पत्थर के अंदर शगाफ पड़ा और एक बहुत बड़ी बिजली उसमें से गुजर गई। फिर आका अलैहिस्सलाम ने तकबीर कहते हुए दूसरी कुदाल मारी, फिर उसमें शगाफ मजीद फैलता चला गया और बिजली उसमें से निकल गई। फिर आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी ज़रब लगाई और तीसरी ज़रब के साथ वो पत्थर पारा पारा हो गया और उसमें से दोबारा बिजली निकली। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब खड़े थे। आका अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला था। हुजूर ने फरमाया, सलमान क्या तुमने भी वही देखा है जो मैंने देखा? या रसूल अल्लाह मैंने भी वही देखा है। हुजूर ने फरमाया, ये जो पहली ज़रब मैंने लगाई और जिसमें से रोशनी निकली है, अल्लाह पाक ने मुझे यमन की फतह अता फरमाई। फरमाया जब दूसरी ज़रब लगाई और रोशनी निकली, आका अलैहिस्सलाम ने इस पर मुझे शाम की फतह अता फरमा दी है। और जब हुजूर ने तीसरी ज़रब लगाई, फरमाया तीसरी ज़रब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मशरिक और एक रिवायत के मुताबिक फरमाया कि मुझे फारस की फतह अता फरमा दी। अब इन तीनों ममालिक की कुछ रुदाद हम एक और हदीस मुबारका से सुन लेते हैं। यही तीनों ममालिक हैं। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, बारी ताला हमारे यमन में बरकत अता फरमा। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शहर है। हदीस मुबारका में यमन की मोहब्बत का, यमन के इलाके की बरकत का तज़किरा हुआ है। मैं फिर आपसे सवाल करूंगा, बताइए आज की इस जंग के अंदर ईरान के साथ दूसरा कौन सा मुल्क खड़ा है? आगे चले, हुजूर ने फरमाया कि शाम की फतह अता की है। शाम का जिक्र आका अलैहिस्सलाम की अहादीस में कसरत के साथ मिलता है, और शाम के जो अब्दाल हैं, औलिया हैं, इनका तज़किरा आका अलैहिस्सलाम की अहादीस में कसरत से मिलता है। हुजूर ने फरमाया शाम की जमीन वो 40 और बाद रिवायात में 70 अब्दालों से, हुजूर ने फरमाया ये हमेशा भरी रहती है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से तुम पर बारिश बरसाई जाती है और तुम्हें फतह अता की जाती है। और फिर यही वो शाम का मुल्क है जिसके अब्दाल सबसे पहले सैयदना इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैठ करेंगे। यहीं से मुसलमानों के लश्कर की इब्तिदा होगी, वो जो आखिरी जंग होगी जो दज्जाल के खिलाफ। यहीं पर हज़रत इमाम महदी, ये जो आज के दौर का शाम है ना, ये उस दौर के अगर शाम की बात करें तो फलस्तीन का इलाका भी इसी में शामिल है, उर्दन का जो इलाका है ये भी इसी के अंदर शामिल है, और इराक का कुछ एरिया इसके अंदर शामिल है। ये उस दौर का शाम है। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जो जामे मस्जिद दमिश्क है, इसके
मशरिकी मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। वो दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए होंगे, उनके बाल खुश्क होने के बावजूद ऐसे लगेगा कि उनमें से पानी के कतरे गिर रहे हैं। इस हाल में वो मस्जिद अक्सा आएंगे और जब तकबीर हो चुकी होगी वहां से इमाम मोहम्मद महदी मुसल्ले पर खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुसल्ला छोड़कर पीछे आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, इस उम्मत के इमाम अब इसी उम्मत में से होंगे, यानी आप ही होंगे, और वो भी आकर सलाम के हम नाम, उनका नाम मोहम्मद है, और वो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से हसनी हुसैनी सैयद होंगे। यहां मैं ये बात भी अर्ज करता चलूं कि हम जब आका सलाम की अहले बैत के साथ शिद्दत के साथ मोहब्बत की बात करते हैं, इसका एक फैज़ ये है कि अगर हमारी जिंदगियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद महदी को इस दुनिया के अंदर उनका ज़हूर हुआ, उनको भेज दिया, उनकी विलादत हो गई, तो हमें उनको पहचानने और उनका साथ देने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। और यही सबक अगर हम अपनी नस्लों को पढ़ाते रहे तो लाजिम है कि जब दज्जाल का फितना आए तो दज्जाल के फितने से बचने के लिए भी लाजिम है कि हमारे पास एक हाथ में कुरान हो जो हिदायत दे रहा हो, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इमाम मोहम्मद महदी के साथ मिलकर या कुफार के लश्कर के साथ मुकाबला करना है और या दज्जाल के साथ मुकाबला करना है। तो ये लाजिम है कि हमारे पास आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत का दामन लाजिम तौर पर हमारे हाथ में रहे। अब आगे बढ़ते हैं ग़ज़वा खंदक की जो तफसीलात है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमानों के पास खाना कम था और भूख की वजह से उन्होंने पेट पर पत्थर बांध रखे। सहाबा ने आकर सलाम की बारगाह में आकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह भूख की शिद्दत है, हमने पेट पर पत्थर बांधे हुए। आकर सलाम ने अपना कपड़ा मुबारक उठाया, हुजूर ने फरमाया ये देखो तुमने एक पत्थर बांधा है, मैंने दो पत्थर बांधे हुए हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने ये मंजर देखा। उनके घर में एक छोटी सी बकरी और वो जाके उन्होंने अपनी बीवी के साथ मुशावरत की। बीवी ने कहा थोड़ा सा जोक आता है, छोटी बकरी है, मैं खाना बनाती हूँ, तुमने जाके सिर्फ आका सलाम को दावत दे हुजूर के कान में, क्योंकि सब लोग भूखे हैं, जरूरत तो सबकी है, लेकिन ये खाना कम है, सबको पेश नहीं किया जा सकता। जब खंदक खोद कर शाम के वक्त सब लोग घरों को पलटे आकर जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने आकर सलाम के कान में सरगोशी की, या रसूलल्लाह हमने घर में आपके लिए दावत का एहतमाम किया है, अगर आप तशरीफ ले आए। आका सलाम ने ये बात सुनकर पूरे लश्कर ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया लोगों आओ तुम्हारे भाई जाबिर ने तुम्हारी दावत की है, सब मिलकर उसके घर चलते हैं। ये आज के दौर में भी अगर जो ज़ाहिरीन मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो अगर वो इस जगह की ज़ियारत करना चाहते हैं तो इस मोहल्ला का नाम है मोहल्ला बनी हराम, और वहां आज भी सहाबा कराम की औलादें वहां पर बसती हैं। अल्लाह पाक की तौफीक से हमने वो जगह देखी, उस मोहल्ले को देखा है। वो मोहल्ला आज भी रबीउल अव्वल में उस तरह सजाया जाता है जैसे पाकिस्तान में आप झंडियां और लाइटें लगाकर सजाते हैं। तो आका सलाम की मेहमान नवाजी करने वाला वो मोहल्ला मोहल्ला बनी हराम, जहां हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हुजूर को लेकर के जब वहां पहुंचे तो उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा कि मैंने तो खाना तो बहुत थोड़ा सा बनाया है और लश्कर पूरा जा रहा है। जब वहां पहुंचे तो बीवी ने उनको कहा कि मैंने जो तुमसे कहा था कि सरगोशी करना, उन्होंने बताया कि मैंने तो सरगोशी की थी, लेकिन आका सलाम ने ऐलान फरमा दिया। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह खाना थोड़ा है, मामला थोड़ा है। हुजूर ने फरमाया इसको ढक दो और पूरे लश्कर को खिलाते चले जाओ। फरमाते हैं कि पूरा लश्कर वो चंद रोटियां और थोड़ा सा साग वो पूरे लश्कर को काफी हो गया। यहां तक कि हमने उसके ऊपर से जब पर्दा उठाया तो देखा जो खाना हमने बनाया था वो उतने का उतना ही वहां पर मौजूद है।
پھر اسی طرح ایک خاتون صحابیہ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو چند کھجوریں دے کر کے بھیجی کہ جا کر اپنے والد اور بھائی کو جا کر کے دیا، وہ شدید بھوکے پیاسے ہیں۔ وہ آئی اور لشکر میں اپنے والد اور بھائی کو تلاش کر رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کے پاس سے گزری۔ حضور نے ان کو پوچھا کہ اے لڑکی بتاؤ گی تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چند کھجوریں ہیں، والدہ نے دی تھی کہ بھائی اور والد صاحب کو جا کر کے میں پیش کر دوں۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ان کو یہاں لا، ان کو بھی ڈھک کے جہاں رکھ دو۔ حضور نے پورے لشکر میں منادی فرمائی، فرمایا آ جاؤ، جو شخص یہاں سے کھانا چاہتا ہے آئے اور اس کا پردہ ہٹائے بغیر اس میں سے کھجوریں لیتا چلا جائے۔ وہ جو چند کھجوریں 2 افراد کے لیے آئی تھی، وہ کھجوریں بھی سارے لشکر کو پوری ہو گئی۔ اب کفار کا لشکر جب پہنچ گیا اور ایک طرف خندق تھی، خندق کے دوسری طرف وہ لشکر تھا، اس طرف مسلمان تھے، وہ حیران ہوئے اس لشکر، اس پورے معاملہ کو دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک معاملہ ہوا کہ کفار اس خندق کو تو عبور نہیں کر سکے، لیکن ان میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے خندق عبور کی۔ ان میں سے ایک فرد تھا، اس کا نام ہے عمر بن عبد ود۔ مکہ میں یہ مشہور تھا کہ یہ آدمی 100 یا 1000 لوگوں کے برابر اکیلا لڑنے والا ہے۔ بدر میں یہ زخمی ہوا تھا، یہ غصہ کھائے بیٹھا تھا۔ یہ چند لوگوں کے ساتھ جہاں خندق کی چوڑائی کم تھی، اس نے خندق عبور کر لی اور آ کر اس نے مبارزت طلب کی۔ اس نے کہا آؤ بھائی، جو کوئی جنت پہنچنا چاہتا ہے یا مجھے جہنم پہنچانا چاہتا ہے میرے سامنے آئے، تمہیں بڑا دعویٰ ہے اپنے اوپر۔ ایسے موقع کے اوپر آقا علیہ السلام نے اپنے لشکر کی طرف نظر دوڑائی۔ حضور نے فرمایا ابھی کون اس بدبخت کے مقابلے میں جائے گا؟ تو کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا سوائے حضور مولا کائنات مولا۔ حضور نے فرمایا علی آپ ہاتھ نیچے کر لیں۔ حضور نے پھر کہا بھی کون اس کے مقابلے میں جائے؟ پھر کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، حضور مولا کائنات نے ہاتھ کھڑا۔ حضور نے فرمایا علی آپ ہاتھ نیچے کر لیں۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کون اس بدبخت کے مقابلے میں جائے گا؟ تیسری دفعہ بھی صرف حضور مولا کائنات نے ہاتھ بلند کیا۔ اب اس کا منظرنامہ دیکھیے، ایک طرف پورا کفر اجتماع کر کے آیا ہوا، سارے کفار چاہے وہ اہل کتاب ہیں، یہ مکہ کے مشرکین ہیں یا بنو غطفان کے اہل کتاب ہیں، وہ سب لوگ خندق کے دوسری طرف ہیں، اور ان کا نمائندہ بن کر عمر بن عبد ود جو 1000 یا 100 لوگوں کے خلاف لڑنے والا تھا، وہ خندق عبور کر کے یہاں پر کھڑا تھا، یعنی پورے عالم کفر کا نمائندہ عمر بن عبد ود تھا۔ ادھر پوری دنیا کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کی تسبیح اور کلمہ پڑھنے والے تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اہل ایمان اور اللہ کا نام لینے والے سچے مسلمان بستے تھے۔ ان کا ایک نمائندہ حضور مولا کائنات تھے جو اس عالم کفر کے نمائندہ کے لیے جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے تلوار دی۔ جب مولا علی رخصت ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کیونکہ وہ پورے عالم کفر کا نمائندہ تھا اور للکار رہا تھا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ ادھر پورے عالم ایمان کا ایک نمائندہ تھا جس کو آقا علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا۔ حضور نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ عمر بن عبد ود کی عادت تھی، وہ اپنے مقابلے میں آنے والوں کو 3 خواہشات پیش کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضور مولا کائنات نے فرمایا پہلی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، فرمایا دوسری یہ ہے کہ جہاں سے آئے ہو پلٹ جاؤ، اور تیسری یہ ہے اگر دونوں پہلی قبول نہیں کرتے تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کو کسی نے کان میں بتایا یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ عمر بن عبد الود کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے تم ابو طالب کے بیٹے ہو، ابو طالب کے مجھ پر احسان ہے، میں چاہتا ہوں تم رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہو، میں تمہیں چھوڑ دوں تم پلٹ کر چلے جاؤ،
तुम चले जाओ, मेरे हाथों से जाया ना हो। हुजूर मौला कायनात ने फरमाया ये तेरी ख्वाहिश होगी, मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं तुझसे जंग करूं और तुम जैसे दुश्मन इस्लाम को जहन्नम वासिल कर। ये सुनकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया, अपने घोड़े से नीचे आया, अपने घोड़ों की कोंचे काट दी और ये बताने के लिए कि मैंने अपना वापसी का रास्ता खत्म कर दिया है। आगे बढ़ा, हुजूर मौला कायनात पर वार किया। हुजूर मौला कायनात ने ढाल से वार रोका, वो ढाल को चीरता हुआ वार हुजूर मौला कायनात के यहाँ माथे पर उसका जख्म लगा। अब बारी हुजूर मौला कायनात की थी। हुजूर मौला कायनात ने उस पर एक ज़र्ब लगाई, यहाँ कंधे की हड्डी को लेकर उसको दो टुकड़े करके जहन्नम वासिल कर दिया। ऐसे में गर्दो गुबार उठा, आका सलाम के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उस गर्दो गुबार में जब वो जहन्नम वासिल हुआ तो मौला कायनात ने नारे तकबीर बुलंद किया। आका सलाम जान गए कि अली फतह हो गए। पलट कर वापस आए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अली, अमर बिन अब्दे बुद की ज़रा बहुत कीमती ज़रा है पूरे अहले मक्का, पूरे अहले अरब में, आपने उसकी वो ज़रा क्यों हासिल नहीं की? आपने फरमाया इसलिए जब मैंने उसको ज़र्ब लगाई वो दो टुकड़े हुआ, उसका तहमल खुल गया था, उसकी शर्मगाह नंगी हो गई थी। मैंने शर्म की वजह से, हया की वजह से, इस वजह से चाहा कि उसका सतर नंगा ना हो, मैंने उसकी ज़रा हासिल नहीं की। अली ने उस पर कर्म ये किया कि ऐसे काफिर को भी जहन्नम वासिल करते हुए उसको भी बेआबरू नहीं किया। इसके बाद उन काफरों ने बनु कुरैदा, जो अहले किताब का दूसरा कबीला था जो मदीना के अंदर मौजूद था, उन मुसलमानों की पुष्ट पर जहां उनके औरतें और बच्चे थे वहां पर बनु कुरैदा का कबीला था, उन्होंने मुसलमानों के साथ बदअहदी की, बदशिकनी की। आका अलैहिस्सलाम की इंटेलिजेंस क्योंकि बहुत तेज थी, आका अलैहिस्सलाम ने 3 लोगों को भेजा कि जाओ इन हालात का पता करके आओ कि ये जो खबरें हमें मिल रही हैं इनकी तस्दीक करो। आका अलैहिस्सलाम को बताया गया कि या रसूल अल्लाह, बनु कुरैज़ा ने हमारे साथ बदअहदी की है मुसलमानों के साथ, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा और इरादा रखते हैं। इधर कुफार उन्होंने इतनी संगबारी की, इतनी तीर फेंके कि मुसलमानों की ज़ोहर असर की नमाजें जाती रहीं। आका अलैहिस्सलाम जब नमाज कज़ा हुई, हुजूर ने कहा बारी ताला अपनी आग नाज़िल फरमा, इन बदबख्तों के पेटों को आग से भर दे। फिर जो आज अगर आप खंदक के मकाम पर जाएं, मस्जिद फतह बनी हुई है पहाड़ की चोटी पर, आका अलैहिस्सलाम ने वहां गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ की। सब सर्दी का आलम था, 1 महीना के करीब पूरा होने वाला था, कुफार बैठे हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद नाजिल फरमाई और तेज आंधी और बारिश नाजिल की, इस सूरत में कि उनकी हांडियां उलट गई, चूल्हे बुझ गए और कुफार के खैमे उलट गए और उनके पूरे लश्कर में भगदड़ मच गई। फिर आका अलैहिस्सलाम ने यहां पर भी मुखातिब किया मुसलमानों के कि कौन है जो जाकर उनकी खबर लेकर के आए, उनके क्या मामलात हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब खुद फरमाया। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जब मैं उनके लश्कर में पहुंचा तो हर तरफ भगदड़ थी। अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने ऐलान किया कि इस भगदड़ में दुश्मन को पहचानने के लिए हर शख्स अपने साथ वाले को चेक करे कि वो कौन है। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मैंने फौरन अपने साथ वाले का बाजू पकड़ के पूछा कि तुम कौन हो, इस डर से कि वो कहीं मुझसे पूछ के पहचान ना ले। फिर कहते कि मैंने उनकी सारी सरगोशियां सुनी, मैं पलट कर आया, आका अलैहिस्सलाम पर कि या रसूल अल्लाह वो ये कह रहे थे, और एक हालत तो ये थी कि करीब था कि मैं अबू सुफियान को भी कत्ल कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा रात अफशा ना हो जाए, जो हुजूर ने ड्यूटी मुझे दी है वो पूरी करूं। तो इंटेलिजेंस ऑफिसर कामयाब ये होता है कि वो उसको जिस मिशन पर भेजा जाता है वो मिशन पूरा करके लौटता है। तो आका अलैहिस्सलाम की वो सारी इंफॉर्मेशन ला के हुजूर को दी। यहाँ ग़ज़वा खंदक का एक हिस्से का इख्तिताम हुआ कि कुफार पलट कर पीछे चले गए। जब वो पलटे तो हुजूर ने फरमाया अब ये लोग तुमसे दोबारा कभी जंग करने नहीं आएंगे। ये अहले मक्का की मुसलमानों से आखिरी जंग थी। जब वापस पलटे, अब सुनिएगा, अपनी गुफ्तगू वक्त खत्म हो गया, गुफ्तगू भी तकरीबन खत्म हो चुकी है।
आका अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया और अपनी ज़िरा मुबारक उतारी, और अभी मुसलमानों के जख्म वो उन पर पट्टियां की जा रही थी कि हज़रत जिब्रील अमीन आए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म ये है कि वो जो बनु कुरैज़ा के लोग हैं उनका मामला भी अभी पूरा कर दिया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ जिब्रील, ये मेरे साथी मेरे सहाबा पिछला 1 महीना खंदक खोदते रहे, अब 1 महीना जंग की हालत मेरे जख्मी हैं, अभी घरों को पलटे हैं। पर अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक का अमर ये है, फरमाया कि हमने आपकी फतह लिख दी है, आप जाकर अहले बनु कुरैज़ा के किलों के दरवाजों को हिला दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको फतह अता फरमा दे। अलगरज मुख्तसर ये अर्ज करता हूं कि मुसलमानों ने जाकर बनु कुरैज़ा के किले का मुहासरा किया और बहुत लंबे चौड़े मुहासरे के बाद उन्होंने हजरत साद बिन मुआज को अपना सालिस चुना। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये उनके साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे, अंसारी सहाबी थे। उन्होंने कहा कि जो फैसला साद बिन मुआज करेंगे हम उसको मंजूर कर लेंगे। आका अलैहिस्सलाम के पास हज़रत साद बिन मुआज आए, हुजूर ने फरमाया साद, मुझे ये बात मंजूर है। उन्होंने हुजूर से इतनी दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं जो फैसला करूंगा वो कबूल होगा, यानी मेरे फैसले के बाद फिर इफ एंड बट नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया हाँ साद, जो तुम कह दोगे वही हमारा फैसला होगा। उन्होंने फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वाक़अतन जो मैं फैसला करूंगा? हुजूर ने फरमाया हाँ साद, जो फैसला तुम कर दोगे। हज़रत साद बिन मुआज ने फैसला ये किया, या रसूल अल्लाह, इनके जितने बाले मर्द हैं इनको कत्ल कर दिया जाए और इनकी औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाए। ये वो पहला मौका था कि मुसलमानों के मुकाबले में इतनी बड़ी तादाद में कुफ्फार जहन्नुम वासिल हुए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर। और मैं यहां पर एक और बात आपको अर्ज कर दूं, यहां से जो जिंदा बच गए वो वापस जाकर खैबर में आबाद हुए, और फिर जब सन 7 हिजरी में ग़ज़वा खैबर हुआ तो इनको खैबर से भी निकाल दिया गया, शिकस्त फाश हो गई। तो आपको आज की मॉडर्न डे की बात बता रहा हूं, ये जुमला सुन लें और जाके इसको गूगल पर लिख के सर्च करें। मैंने आपसे जो गुफ्तगू के आगाज में जो बात की थी, आप इन वाकयात को भूल गए होंगे, हम इन वाकयात से नावाकिफ हैं। हमने अपनी औलादों को, बच्चों को ये वाकयात पढ़ाना छोड़ दिए, वो आज तक इस वाकये को नहीं भूले। ग़ज़वा खंदक का हीरो कौन है बताइए? सारे दोस्त बोले कौन है? हुज़ूर मौला कायनात। खैबर का हीरो कौन है? ये वो बुनियादी वजह है, यहूदियों की साजिश है कि मुसलमानों के दिलों के अंदर आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत और बिलखुसूस मौला कायनात के मकाम मर्तबा को कम किया जाए। आप जाके गूगल पर सर्च करें और लिखें, उनको आपको बैनर लिखे हुए मिलेंगे। वो लोग जब एहतजाज करते हैं न्यूयॉर्क की गलियों के अंदर, यूरोप की गलियों के अंदर, तो उसके ऊपर वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं खैबर वाज योर लास्ट चांस, और वो लिखते हैं वी डिड नॉट फॉरगेट द खैबर। उनके दिलों के ऊपर आज तक खैबर का वाकया रकम है, वो इसको नहीं भूले, वो इसको दिलों पर नक्श करके बैठे हुए, और वो वही बदला मुसलमानों से लेना चाहते हैं कि इनको भी इनके मुल्कों से मुल्क बदल कर दिया जाए, और अगर निकाला ना जाए तो कम से कम इनकी वो हालत कर दी जाए कि ये लोग कहने के मुसलमान रहें लेकिन देखने में यहूद और हिनूद नजर आए। जिनको इकबाल ने कहा था कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और आज के दौर में भी अगर उनके मुकाबले में, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में हमें एक अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, यानी हमारे वजूद को खतरा है, तो किस मुल्क से है? ईरान से। और ईरान किसका नाम लेवा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका अलैहिस्सलाम की हिदायत की मार्फत अता फरमाए, हुजूर की सीरत मुबारक से सीखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।